Our next topic, student, is energy levels of hydrogen atom. In the previous video, we studied that the total energy of hydrogen atom is minus 13.6 upon n square electron volt. Okay, for nth orbit it is minus 13.6 upon n square electron volt, and for hydrogen atom it was, we have taken Z is equals to 1 for hydrogen atom. That's why this is the total energy comes minus 13. ये कैसे आई? एक R is the radius, R की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया आपने, एंड दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी Z square upon n square. This complete value after putting all the constants k, 9 into 10 to the power 9, e, all these terms, we get minus 13.6 electron volt. Z is equals to 1 and n is over here, so it is n square. ये total energy थी हाइड्रोजन एटम की. Now we have taken in the previous session for the different values of n. For the different values of n, for example, let us consider for the n is equals to 1, for n is equals to 1 अगर हम यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले में n is equals to 1 यूज़ करिए, एनर्जी विल बी हाउ मच? E1 for the first orbit. Energy of the first orbit is how much? Minus 13.6 electron volt. ओके, सिंपली n इज इक्वल्स टू 1 रखिए, ये हमने देख चुके हैं हम इसके पिछले सेशन में. minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. फॉर द सेकेंड ऑर्बिट इफ यू विल पुट n इज इक्वल्स टू 2, अगर हम n इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो कितना होगा? दैट विल बी द E2 इज इक्वल्स टू minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, n इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करें, 4 होगा ये, 13.6 माइनस 13.6 अपॉन 4 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, नाउ फॉर द n इज इक्वल्स टू 3 फॉर द थर्ड ऑर्बिट, फॉर द n इज इक्वल्स टू 3 फॉर थर्ड ऑर्बिट, n इज इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 9 होगा ये. minus 13.6 upon 9, it will be about 1.5. E3 will be the minus 1.5 electron volt. Okay, आप n is equals to 4 सब्स्टिट्यूट करें, अगर n is equals to 4, E4 will be minus 16, minus 13.6 upon 16, minus 13.6 upon 16, minus 0.85, minus 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको एनर्जी मिलेगा. नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 5, E5 फिफ्थ एनर्जी लेवल विल बी 525 minus 13.6 upon 25 minus 0.54, minus 0.54 एंड सो ऑन. आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, n की वैल्यू पुट करते जाइए, यू विल गेट द एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट. ओके, नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें? n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर है तो n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मीन्स E इन्फिनिटी, this thing upon infinity, it will be 0. Energy of the orbit or the energy of the electron for the highest level, for the outermost level, that is equals to 0. That is, अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट पर है, उस एनर्जी लेवल पर है, तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? 0 होगी. दैट मीन्स, व्हाट डज इट मीन? कि इट एक्ट्स एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन. इट एक्ट्स एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन. इट हैज़ अ मैक्सिमम एनर्जी. मैक्सिमम, सी, एनर्जी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. दिस इज द इंक्रीजिंग लेवल.
increasing level. Energy is continuously increasing and reaches to the maximum at which point, at which orbit? For n is equals to infinity, we get the energy 0. So these are the various energy levels of the hydrogen atom. Clear? Now, first of all, write down this various energy level. Now we will see, students, about the conditions when the electron jumps from any higher orbit to the lower orbit. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले सेशन में बताया. Now we will study in detail what happens if electron jumps from any higher orbit to the lower orbit. Okay, so first of all, write it down. Our next topic is what happens when the electron jumps from the any higher orbit to the lower orbit. If electron jumps from higher to lower orbit. Okay, lower orbit. हायर ऑर्बिट से कहाँ जंप कर रहा है? लोअर ऑर्बिट पर. किस तरह से देखें आप यहाँ. फॉर एग्जाम्पल, ये दो ऑर्बिट है. दिस इज द EI, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द EF. इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल. इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम इनिशियल फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट. This is the higher orbit. Okay, this shows that EI is greater than EF. What will happen? क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जंप करेगा? मैंने अभी बताया था इसके पहले. It loses certain energy that will be equal to h nu. Okay, so how can you write it over here? EI minus EF is equals to h nu. Okay, so this can be also written as nu is the frequency. This can be written as C upon lambda. Right, now put the value of EI. EI put करिए. ध्यान रखिए, for hydrogen atom we are taking for the hydrogen atom. For hydrogen atom, see equation number 1. Z is equals to what? Z is equals to 1 for hydrogen atom. This can be written as EI, means all these things with Ni. Z is equals to 1. ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं स्टूडेंट्स, ये याद रखना पड़ेगा. So this can be written as EI can be written as minus half K square e power 4 pi square m upon n square. This is n square, I have taken it outside. ये n square हमने ऑलरेडी ले लिया है. ध्यान रखिए, यहाँ ये n square था, ये ऑलरेडी हमने यहाँ n square लिया है. This is h square and z is equals to 1. Z is equals to 1 for hydrogen atom and it is for Ni square. Ni of the ith energy level which is the higher energy level, तो n की जगह हमें Ni रखना पड़ेगा. फाइनल लोअर एनर्जी लेवल, ये सब चीज़ें वही हैं स्टूडेंट्स. देखिए सारी चीज़ें वही हैं. Z इज इक्वल्स टू 1 रखा हमने, n की जगह Ni रखा, माइनस हाफ K स्क्वायर e पावर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर एंड nf स्क्वायर. ओके, nf यहाँ ni है, यहाँ पर हमने nf फाइनल ऑर्बिट रखा. nf दैट इज इक्वल्स टू h c अपॉन लैम्डा. ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस बिकम्स पॉजिटिव. नंबर 1, सारी चीज़ें कॉमन है, कॉमन लीजिए. सिर्फ यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपॉन Ni स्क्वायर प्लस
1 upon nf square. Okay, so take k square e power 4 pi square m upon h square. Okay, and half also 1 by 2 k square e power 4 pi square m अपॉन h स्क्वायर. ये कॉमन है, वो यहाँ भी है. ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर. ओके, ये नेगेटिव होगा एन आई माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा. सो 1 अपॉन लैम्डा विल बी रिटन एज, ये इसको यहाँ पर आप लेकर के आए. So if you will put this, if you will shift this hc over here in the denominator, what will happen? On shifting, this will be only 1 upon lambda. Okay, this is k square e power 4 pi square m upon 2h cube into c. Okay, h will over here, so it will be h cube and c, and remaining term will be 1 upon nf square minus 1 upon ni square. Now see students, all the things which is outside this bracket is constant. देखिए k, e, 4 pi, m, h, c, all these terms are constant. So this all constant has a particular name that is called Rydberg's constant. Okay, what? Rydberg's constant R, and remaining term will be 1 upon nf square minus 1 upon ni square is equals to lambda bar. 1 upon lambda is called wave number. Remember, 1 upon lambda, wave number, that is also known as lambda bar. Wave number, number of waves per meter, इसकी यूनिट होगी. तो जो R है स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू है, जब आप इसकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट विल बी 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7. 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 per meter. Okay, so this is the value of the Rydberg's constant, and finally 1 upon nf square minus 1 upon ni square is equals to lambda bar. So this is the wavelength, that is the this can be easily explained, the spectral, the line spectrum of a particular wavelength produced by the hydrogen atom. So by using this Bohr's atomic theory, line spectrum of the hydrogen atom can easily explained which was the drawback of Rutherford experiment, which was the drawback of Thomson's model. तो यहाँ हम जो वेवलेंथ है पर्टिकुलर एटम की, ओके, जो लाइन स्पेक्ट्रम है, वो हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. NF is the number of final orbit, Ni number of initial orbit. Okay, so remember this formula. We already studied that 1 upon lambda is equals to R 1 upon nf square minus 1 upon ni square. Okay, R is the Rydberg's constant. Okay, 1.097 into 10 to the power 7 per meter. तो ये जो वेवलेंथ है, एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड easily the line spectrum of the atom. Now the various energy levels and what are the different energies produced if electron jumps from any higher orbit to the lower orbit. For example, अगर कोई एनर्जी लेवल किसी हाइड्रोजन एटम के आप बनाएं
तो आपने अभी ये बनाया था स्टूडेंट्स, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ओके, ये आपने एनर्जी लेवल बनाए फ्रॉम 1 to now if electron jumps from any higher orbit to the first orbit, क्या कहा मैंने, एनी हायर ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करता है, चाहे वो सेकंड से फर्स्ट पर आए, थर्ड से फर्स्ट पर आए, फोर्थ से फर्स्ट पर आए, फिफ्थ से आए, सिक्स्थ से आए या सेवेंथ से आए, किसी भी हायर ऑर्बिट से कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट में। तो एन आई इज व्हाट, एन आई इज 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड एन एफ इज 1। क्लियर? फाइनल ऑर्बिट जहाँ आ रहा है वो कितना है, 1 है, और जहाँ से आ रहा है वो 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ऐसे में जो लाइट प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स, जो लाइट प्रोड्यूस होगी, क्लियर, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, डेफिनेटली एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एच म्यू होगा, वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ आपने ये निकाली। तो ये जो वेवलेंथ होगी दैट कम्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, दिस कम्स अंडर यूवी रेडी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी। और ऐसी स्पेक्ट्रम को जब एनी हायर से फर्स्ट पे जंप कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम कहते हैं लायमन सीरीज, लायमन स्पेक्ट्रम या लायमन सीरीज, दैट कम्स इन द, कहाँ आएगा, अल्ट्रावायलेट रीजन में। नंबर 2, इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द सेकेंड, मतलब इनिशियल कितना होना चाहिए, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और फाइनल कितना होना चाहिए, 2, एनी हायर से 2 पर आए, मतलब ऐसे देखिए, ये थर्ड से 2, फोर्थ से 2, फिफ्थ से 2, सिक्स्थ से 2 और सेवेंथ से 2, और एनी हायर से सेकंड पर आ रहा है। तो ऐसी स्पेक्ट्रम को हम सबसे पहले वो आएगा विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन, ओके, और उसको हम कहते हैं बामर सीरीज, बामर सीरीज या बामर स्पेक्ट्रम। क्लियर? वो कहाँ आएगा, कौन सी रीजन में आएगा, विजिबल रीजन में आएगा। कैसे इजीली निकाल सकते हैं, थर्ड से अगर सेकंड पर आ रहा है तो इनिशियल जो है वो 3 है, फाइनल 2 है, इनिशियल 3 है, फाइनल 2 है, ठीक है, फाइनल 2 है, वैल्यू पुट करिए, आर की वैल्यू पुट करिए 1.097 10⁻7 पर मीटर, और हमको वेवलेंथ मिल जाएगी। तो वो किस रीजन में आएगा, विजिबल रीजन में। थर्ड, अगर Ni जो है वो 4, 5, 6 ये हो, और कहाँ जंप करे, Nf थर्ड ऑर्बिट पर, कहाँ आना चाहिए, थर्ड ऑर्बिट पर। ऐसा अगर जंपिंग हो रहा है तो स्टूडेंट्स थर्ड ऑर्बिट पर आना चाहिए, किसी भी हायर से थर्ड ऑर्बिट पर, लाइक दिस। तो लायमन, बामर, पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज, ओके। और ये किसके अंदर आएगा स्टूडेंट्स, इट कम्स इन द इंफ्रारेड रीजन, इट कम्स अंडर इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन में ये लाइट बिलोंग करेगी।
कौन सी सीरीज कहते हैं? पाश्चन सीरीज। ओके, नाउ फोर्थ वन, अगर Ni 5, 6, 7 ये सारे हों और फाइनल और कहाँ जंप करना चाहिए? फोर्थ पर, एनी हायर से फोर्थ पर। ऐसी सीरीज भी इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रीजन में आएगी और इसको हम कहते हैं ब्रैक्ट सीरीज। ब्रैक्ट सीरीज, ओके, इंफ्रारेड रीजन में आएगी। कहाँ आना चाहिए? फोर्थ ऑर्बिट पर, एनी हायर टू फोर्थ, ये ब्रैक्ट सीरीज आएगी। राइट। फिफ्थ, इफ Ni इज 6, 7, 8 एंड सो ऑन, किसी भी हायर ऑर्बिट से फाइनली जंप होना चाहिए फिफ्थ ऑर्बिट पर, क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इस तरह से, ये फिफ्थ ऑर्बिट पर जंप कर रही है, तो इसे क्या, ये भी इंफ्रारेड रीजन में आएगा, इंफ्रारेड रीजन में आएगा और इसको हम कहते हैं पफंड सीरीज। पफंड सीरीज, राइट। तो ये वेरियस स्पेक्ट्रम हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर जंप करता है। सो दीज आर द वेरियस स्पेक्ट्रम formed by the hydrogen atom when it jumps from any higher orbit to the lower orbit. Is it clear? So this is Lyman series, it is Balmer series, फिर थर्ड पर जंप कर रहा है पाश्चन सीरीज, इट इज पाश्चन सीरीज। इट इज फोर्थ पर जंप कर रहा है, इट इज ब्रैक्ट सीरीज। एंड लास्ट वो फिफ्थ पे जंप कर रहा है, इट इज पफंड सीरीज। सो दीज आर द वेरियस स्पेक्ट्रम formed by the hydrogen atom. Clear? Now write down.